Dr. Prisha, please continue. Okay. So, hello everyone. I hope I'm audible and visible. So, we'll start with a small story. Okay. Always, I'll start with a small story. I'm audible now, Dr. Payal and Dr. Vikas. Okay, fine. So, mainly, his motivation story आपने हर बार सुना होगा, but I always tell it with a small message. So, mostly एक सर्कस पे गए थे, तो सर्कस के वहां गए थे, तो sorry, yeah, okay, Dr. Payal. Sorry, I skip on to English also. So, when a man went to a circus place, there was a small rope being tied to a giant elephant. A huge elephant was being tied. I hope you have heard about it. So the man was astonished and he asked, like, isn't it foolishness, like a small rope is being tied to a giant elephant, that a slight tug or slight stretch can break the rope? So the main man of the circus, he told, like, no, the elephant, even though he can't, he can, but in his mind it is like he cannot break the rope, because since he was small, as a small elephant, a kid elephant, he was being tied to the small rope, and since his smallest young ages, he's been trying to break the rope, and he couldn't in his younger days. Even though he has grown up, in his mind he is already the same kid elephant and the same giant rope, because in his mind he has not even grown up like that. He is being told. So in that conditions, he just asked, like, am I audible now? Still I am audible now? Yes, ma'am, but Okay. your voice is somehow cracking. In that conditions, he just asked, like, the same thing only. Maybe we have interrupted or we have tried multiple exams in our lifetime, but the thing was that it was not successful. Maybe in some or other ways we were not successful. Fine. Okay. Now is it audible? Is it audible now? It's audible, but your voice is cracking. Is it audible? Maybe due to low bandwidth. Okay. Audible now? Okay. Yes, ma'am. Yeah, okay. I'll off the video. 1 minute. Net is just showing also. What happened? Okay. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, fine. So I was telling about that story. Sorry. You can mute another device or
जी, स्पीकर ऑफ कर दीजिए दूसरे डिवाइस का, और उसका माइक भी अगर, हाँ अभी ठीक है मैम। Now it's clear, no, sir? मैम यस, नाउ क्लियर। Okay. So I was telling about that story in that one. So in between it got interrupted. So we always think that in our minds we have failed in one or two exams. So it should not be the way like we have failed and it should not lead to an interruption on our next exams. So in such a condition, you should never be like an elephant and never you should think the exam as a rope, because you are a huge elephant. Maybe your capacities are similar to a huge elephant. That's why it should be always like, yeah, I can do it, that track the things and all. And one more thing is that even though the classes are for 1.5 hours, it is our guiding. We are just guiding you. The ultimate workers will be you. And one more thing, there are two things you need for these exams. That is one Bluetooth headset, and then the other one is regarding a actually hand watch is not needed. A stopwatch in your phone will be enough. But the thing is that whenever you go for a studies, it should be saying that you operate on a phone where there are minimum calls being received, because you will be always working or doing other things in life, and side by side you will be studying, because in such there will be very few people who can give 100% of their time for their studies. Now maybe the family responsibilities or anything may be there. In such a conditions, a stopwatch, maybe you are studying for 1 hour also, that 1 hour should be having a 100% concentration. In such a condition, a stopwatch in your phone should be needed, and a Bluetooth headset. Bluetooth headset, because most of the time you will be traveling, and in that traveling time you should be able to hear. You should be able to hear. In such a conditions, the app will be help you. Like today's class will be uploaded. In case you miss today's class, next day when you're traveling, you can hear the classes, and then you can move on or do your works where there is minimum 100 minimum concentration which is needed in your works. So always remember the elephant and the rope story, and then regarding the two minimum things which is needed to have a good backup or to have a good studying time or study time or anything you can. Understood up to this? Any doubt up to this which you have to just clear? And one more thing is regarding it is a journey. See, it is a long journey, and it is mostly not the journey which is having the problem, but the demotivation which is having there. So the demotivation, the problem is that most of the time you will be demotivated in your life or in your personal things or anything which is disrupting. In such a conditions, you need some guiding force or guiding thing which you can show for enlightening your path. In such a conditions, I think myself and Dr. Sri Lakshmi or Dr. Mani sir will be available with you, and of course Dr. Shatrugna sir will be also available. So anytime if if you feel very low, you just drop a message so that we will be there with you a call away. Maybe in your case, for even in case we don't have a quick reply or quick calls, but we will be there at the end of our day. So I think that we can assure you. Anything else you want to ask means you can ask. Dr. Payal, Dr. Anju, anything else? Shall we continue? Anything else? Okay. So we'll go with the classes. Am I audible now? No ma'am, your laptop voice is cracking. You were fine with your mobile. Today, we're dealing with Kriya aspects. Screen is visible to you? The screen? The screen is visible? No ma'am, not shared yet. Not seen? Okay, fine.
Is it visible now? Yes, ma'am. It's visible. Okay. Okay. Fine, sir. The Agni PPT is visible, sir? Yes, ma'am. Okay. So, Ma'am, your voice is not clear. we will be moving on. Ma'am, your voice is not clear. So Agni, maybe we know the Agni Pariyapani. So both parts. In that parts, we will be dealing with the small PPT aspects of Agni, and then we will be going to the small MCQ part of regarding Prakriti and also regarding anatomical and physiological aspects, the modern concepts of it. So in this one, we will be dealing with okay. So in this, the Agni, maybe we know Nitya and Anitya and the Paramanu Rupa, Taba Sandaba, Taba Daha, Taba Aishwarya. These are the things which mainly of responsible. If anything is there, you can just give a message. Is it clear now? Everything is clear? The screen and the voice? No, Screen ma'am. and the voice is okay? No, ma'am. Ma'am, your voice is... We will be dealing with the Agni part and also regarding the Mandagni part, which is responsible for the Dosha Pragoba, which is happening here. The Dosha Pragoba, and also with the Nirutti aspects, wherein wherein regarding the substances which is having the spreading nature, which is called as the Agni part, and also with the synonyms of Agni. So mainly, you have heard regarding Vaishwanara, Sarvapaga, and all. The Vaishwanara Churna, you might have heard about it. The Vaishwanara, that is having the site which is having the Kukshi part of it. The Kukshi part which is there. Is it all clear now? Ma'am, your screen is not visible. The screen and things are visible? No, ma'am. And also your voice is cracking. Maybe you have connected with two devices. So better if you... Okay. I'll take an exit from this, yeah? Okay, sir. Yeah, you just turn on the mic of your mobile device only and you can share the screen from your laptop. It's cracking and maybe due to low bandwidth. Okay. Now it's clear? The screen and the voice? Voice is clear, but you have to share the screen again. I think वो इस sharing stop हो गया है. Okay, fine. Now the screen is visible. Now the screen is visible, sir. The screen is being shared, but your voice is cracking. Yeah, screen is visible now, but your voice Okay, is cracking, ma'am. Yeah, screen is visible. Okay. The synonyms part now is also it's cracking. Now, so the voice is cracking. No, now better. Okay, fine. So maybe you have heard regarding the Vaishwanara, the Vaishwanara Churna regarding the Agni Deepana aspects. So Vaishwanara is also one of the meaning of one of the synonym which is told for the Agni part. The site is being the Kukshi part, and then Sarvapaga is one of the synonym where the Pajana of Stula and Sukshma Dravya is also happening. Then also
Amivachadana, Shuchi, these are other things, but you have to just remember the Vaishwanara part of it. Then these are the Agni Mahabhuta, which is the guna aspect of it. And then when coming to the importance of Agni part, these are the Ayu, Varna, Bhala, Swasthya things. And the famous quotations where the Roga so Sarve Api Mandakno or Samadosha Samaknisha, these are also done. Then coming to the Agni Bheda, there are three things which is told. Bhutagni, Antaragni, and also regarding Dhatu Agni. Dhatu Agni, Dhatus are 7, so 7 in number. Antaragni, total 1 in number. We tell no, colloquially we tell like मेरे अंदर जलन हो रहे या फिर मेरे अंदर फायर आ रहे हैं तो फायर इट इज ओनली वन एस्पेक्ट तो फायर आ रहे हैं तो you have to just remember like the fire which is happening. The language is okay. Should I speak to Hindi? Should I speak in Hindi? Language, should I speak in Hindi? Okay, Dr. Vikas. Okay, anyone else? Okay, in that time I'll mix up both. In between, you have something you can just tell, okay? So mainly regarding भूताग्नि के बारे में बोलते हैं तो भूताग्नि पंचमहाभूताग्नि करके बोलते हैं तो पंचमहाभूतास आर 5 इन नंबर करके बोलते हैं. अंतराग्नि हमारे अंदर अग्नि का जलन हो रहा है तो एक ही नंबर करके बताएगा. धातु अग्नि आते हैं तो धातु 7 इन नंबर करके आएगा. एंड देन रिगार्डिंग पाचकाग्नि, रंजकाग्नि, साधकाग्नि, आलोचकाग्नि और प्राचकाग्नि करके इतना पार्ट्स के बारे में डील किया है. फिर उसके साथ साथ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश करके भी इसके पार्ट्स में आते हैं. अकॉर्डिंग टू वाग्भटा के हिसाब से भी 5 पित्ताग्नि, 5 भूताग्नि, 3 मलाग्नि करके इसके पार्ट्स में आते हैं. शार्ंगधाम में मेनली पंच पित्ता एस्पेक्ट्स करके एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं. एंड अग्नि का फंक्शन के बारे में देख लेते हैं तो मेनली पाजना, दाहना, भिन्न संगादा करके आते हैं. इसमें मेनली आपको ये पार्ट दिखता है रांजना और फिर वर्णकरा एक्शन. तो अग्नि का एक एक्शन क्या है? वर्णकरा. अग्नि कैसे होते हैं? इनका रंग बहुत अच्छा होते हैं ना, इसलिए वर्णकरा एक्शन. यू मीन देयर विल बी अ वर्णकरा एक्शन व्हिच इज हैपनिंग इन द केसेस ऑफ वन अमंग द फंक्शन ऑफ अग्नि. देन ऑल्सो उसके साथ प्रकाशना, paravritti, and then parinama, tapana, bhinna sangada. These are the things which is told here. And then regarding that, the role of Agni in Ahara Pachana will be there. And then regarding the Ahara, which is digested by Jataragni, there will be Mala, Sukshma, Stula aspects, which is told here. And then 4 functional states of Agni, which is told. And then also regarding Vishama Agni, which is told. Vishama Agni, we always know. हम सब जानते हैं इसका विकृति कैसे होता है. धातु उसका समधातुत्व को खो जाते हैं तो उसकी वजह से विषमाग्नि का पार्ट्स रखते हैं. दैट वो भी हम छोड़ सकते हैं. फिर उसके साथ साथ अग्नि की विषमाग्नि पार्ट्स एंड देन डिस्टिंक्शन ऑफ एब्डोमेन, तीक्ष्णाग्नि के एस्पेक्ट्स एंड देन आल्सो रिगार्डिंग मंदाग्नि. ये सब जस्ट थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स का है, वो सब हम छोड़ सकते हैं. समाग्नि का एस्पेक्ट्स ये सब भी हो गया. एंड देन विषमा, ये पीपीटी आपको साइट में अवेलेबल कर देंगे, सो ऐसे ही रीड कर देना. दैट इज ओनली इनफ. जठराग्नि के पार्ट, देन इसका स्थान हमें पता है ग्रहणी, दैट इज साइट ऑफ अग्नि करके आता है. एंड पावर ऑफ रिस्ट्रेन करके, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड करके आता है. उसके साथ साथ जठराग्नि का इंपॉर्टेंस वगैरह देखते हैं तो जनरली भौतिका पंजा करके आता है. फिर ये सब इसका पार्ट्स के श्लोका में आता है. तो इसमें मेनली शेषाः शेषाः कृत्नाशाः पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणा पृथक, मतलब ज्यादातर बॉडी का मेटाबॉलिक एक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाले श्लोका पार्ट है. फिर सप्ताविभिर देहे कायाग्नि, धातुअग्नि वगैरह पार्ट है. फिर उसके साथ साथ अग्नि एंड वेरियस चीजों के बारे में विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि करके आता है. एंड देन अग्नि और पित्ता के डिफरेंस के बारे में भी है. उसका स्निग्धा रुक्ष एस्पेक्ट्स में, गंधा विस्त्रा एस्पेक्ट के बारे में वगैरह कवर किया है. Yeah, no other messages. No? Okay. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Dr. Vikas? Dr. Vikas, Dr. Payal, Dr. Razia? आपको समझ में आ गया इतना तक? You all understood? Yeah, okay.
Okay, 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 Dr. Payal, chat receipt. Yeah, okay, okay. Fine. And then coming to next part, वो है रिगार्डिंग अग्नि एंड पिता के अलावा अग्नि वाया एंड ऋतु करके आता है, उसमें वृद्धा मंदा युवा तीक्ष्णा करके इसके पार्ट्स के साथ साथ अग्नि एंड देन रोगा ये पार्ट भी आता है, अग्नि आमत्वा करके इसका पार्ट्स में। देन अग्नि परीक्षा के बारे में देख लेते हैं, तो जरण शक्ति परीक्षा करके मेनली विषमाग्नि वायाग्नि करके इसके पार्ट्स के बारे में भी कवर किया है। इतना है रिगार्डिंग फर्स्ट इनिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अग्नि के बारे में। अभी हम इसका बाकी जो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डील करने जा रहे हैं, मेनली रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में आप लोगों को ये एक्रोबैट का ये पीडीएफ दिख रहा है क्या? The PDF shared is seen. Dr. Lali? Yeah, okay, fine. It's clear. So, first we go to the modern anatomical parts of it. So, anatomical parts maybe after the क्रिया के बाद हम इसका देख लेते हैं। पहले हम उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जो बचा है उसके पार्ट्स के बारे में हम पहले के क्लास में डील कर लेते हैं। तो इसमें रिगार्डिंग एनाटॉमी का फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन के बारे में है, फर्स्ट पार्ट में जो मेंशन किया है। तो फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन में ज्यादातर पार्ट्स में मेनली आते हैं कि प्राइमरी एंड द प्री मोटर एरिया, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछने वाले एरिया है रिगार्डिंग टेस्ट सेंसेशन के बारे में पूछे थे। टेस्ट 43rd पार्ट करके आता है। फिर उसके साथ साथ विजुअल एसोसिएशन एरिया वो 18 एंड 19 है। तो विजुअल 18 एंड 19, तो 18 एंड 19 ईयर्स में हमारा विजन करेक्ट होना चाहिए ना, तभी हम अच्छे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो ऐसा सोच लेना। टेस्ट आते हैं तो 43, तो 43 टाइप ऑफ डिशेस करके ये पार्ट के बारे में सोच लेना। देन उसके साथ साथ ऑडिटरी एरिया है, तो ऑडिटरी एरिया 41 एंड 42 है। 41 एंड 42 एज में हमारा कान का आवाज थोड़ा कम हो जाता है ना, तो वो है ऑडिटरी एरिया करके ये पार्ट के बारे में भी कवर करना। इन केस द ऑडियो इज नॉट एनीथिंग इज नॉट क्लियर, जस्ट गिव अ चैट। ओके 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 फाइन। ओके ये पार्ट हो गया। ओके एंड देन रिगार्डिंग दूसरा है रिगार्डिंग डक्ट के बारे में है। तो ये ज्यादातर स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबुल ऑफ किडनी इज नॉन एज डैश, ऐसा करके एमसीक्यू पार्ट ऑफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इसमें रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट है रिगार्डिंग स्टेनसन्स डक्ट करके आता है। तो स्टेनसन्स डक्ट ज्यादातर पैरोटिक डक्ट से कनेक्टेड करके आता है। स्टेनसन्स डक्ट एंड पैरोटिक डक्ट करके कनेक्टेड आता है। तो पैरेट करके आता है, पैरेट को स्टेंड लगा दिया, मतलब स्टंड के अंदर, मतलब ज्यादातर ऐसा एक पिंजरा बना दिया है हमने, एक ऐसा पिंजरा बना दिया है एंड पिंजरे के अंदर ज्यादातर एक ऐसा बना देके उसके अंदर पैरेट को ज्यादातर लगा देते हैं। तो क्या होता है, पैरेट को अंदर लगा देते हैं तो क्या होता है, उसको स्टेंड नाम से बोला जाता है। स्टेंड मतलब आयरन बार नाम से आपको याद रखना है। तो इसलिए स्टेंड के अंदर पैरेट नाम के हिसाब से स्टेनसन्स डक्ट पैरोटिड डक्ट करके आपको याद रखना है। फिर उसके साथ साथ विल्सन्स डक्ट करके आता है, हॉफमैन डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट है, वो इतना पूछता नहीं, जस्ट हॉफमैन एंड पैनक्रियाटिक डक्ट करके, मतलब पैनक्रियास वाले लोग हॉफ कर लेते हैं या फिर हॉफिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ सोच लेना पार्ट है। वॉर्टन डक्ट है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड का। फिर आता है बार्टोलिन डक्ट, वो सबलिंगुअल डक्ट ग्लैंड के अंडर आने वाले होते हैं। देन कमिंग टू द मेन ग्लैंड पार्ट ऑफ इट, मेन ग्लैंड में मेनली बाउमैन्स ग्लैंड करके आता है। तो बाउमैन्स ग्लैंड में मेनली नेसल कैविटी आते हैं, बाउमैन्स ग्लैंड के अंदर नेसल कैविटी, ब्लैडिंग ग्लैंड के अंदर टंग आता है, एप्नस ग्लैंड के अंदर वैलेट पैपिला करके भी इसके पार्ट में आ जाते हैं।
तो इसमें ज्यादातर ये है मोल्स ग्लैंड आईलिड। तो आई में क्या होता है, आई इज ए डॉल साइन, मतलब आपने बारबी का डॉल देखा होगा ना, बारबी के डॉल में कैसे होता है, आप लोग वहां पे है ना, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन्स वॉइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस? जितना तक बोला है, पैरेट बोला है, इतना तक समझ में आ गया ना? डॉक्टर अंजू, डॉक्टर अंजू मुकुंदन, यू अंडरस्टूड? या ओके, because I'm not seeing anyone. That's why I've asked. In between, I'll try to just, I want to ask regarding the voice. Are you comfortable with my Hindi or are you comfortable with my English? Which one you tell? In that way, I can take. So that Dr. Vikas is already told regarding the Hindi, but I don't know. I'm not sure about other people. In which language do you prefer? It's a Hindi class. Sorry, it's an English class. The Hindi class will be also available. But if you want to switch in between, I can switch on. Sometimes I forget, but still I'll try. Are you comfortable with Hindi or English? मेरा हिंदी से आपको, yeah, Hindi. Okay, majority is Hindi. Dr. Anshu, I think you will be comfortable with English, I think, no? Yeah, English will be better. Okay. Okay, I understood. Okay, fine. Almost Hindi ही है. Dr. Payal, yeah, Hindi. Dr. Lali, okay, fine. Hindi, okay. Okay, understood. I got an idea. Okay. So, हमें देख लेते हो, मेनली हमें इस पार्ट में देख लेना है रिगार्डिंग ग्लैंड्स के बारे में है। तो ग्लैंड्स में मेनली रिगार्डिंग बाउमैन्स ग्लैंड करके आता है। तो बाउमैन्स ग्लैंड नेसल कैविटी के अंडर आते हैं। तो हम किसी के अंदर झुकते हैं तो हम कैसे होते हैं, झुकते हैं तो ज्यादातर कोई आदमी, मतलब राजा के सामने झुकने वाला आपने मूवीज में देखा है ना, वो कैसे करते हैं, अपने नाक को कवर कर लेते हैं, नाक को कवर करके थोड़ा बेंड कर लेते हैं, ऐसा होते हैं बोइंग इन फ्रंट ऑफ द राजा विथ कवर्ड नोज। तो बो किसके अंडर कर लेते हैं, जुक किसके अंडर कर लेते हैं? आर यू एबल टू सी द कर्सर दिख रहा है? ओके, सो regarding Bladden's ग्लैंड नेसल कैविटी के अंदर आते हैं करके बता देते हैं। फिर उसके साथ साथ एब्नस ग्लैंड है, वैलेट पैपिला, जस्ट वो पार्ट है। ब्लैडिंग्स ग्लैंड टंग के अंदर, मोल्स ग्लैंड आईलिड। तो मोल्स और आई ये दोनों को हमें कंबाइन करके रख लेना है, मोल्स एंड ऑल्सो आई करके। तो मोल मतलब आपको डॉल ले लेना है। डॉल का आई बहुत सुंदर होता है ना, बारबी का वगैरह डॉल का आईज बहुत सुंदर होते हैं, तो इसलिए डॉल्स एंड आई करके आता है, डॉल्स एंड आई। फिर ब्रूश ग्लैंड करके आता है, वो लोअर आईलिड के अंडर है। ब्रूश वगैरह ब्रश कहाँ पे लगाते हैं, लोअर आईलिड, काजल लगाने के लिए, तो ब्रश लगा के लोअर आईलिड को कवर अप कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ ब्रूनस ग्लैंड करके आता है, वो डिओडिनम। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा था, ब्रूनस ग्लैंड डिओडिनम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नो? ब्रूनस ग्लैंड डिओडिनम करके। तो ब्रून मतलब क्या है, ब्रूम करके आ जाना। ब्रूम कहाँ पे लगाते हैं, ब्रूम मतलब हम ज्यादातर साफ करने वाले, वो है ना साफ करने वाले, ब्रूम स्टिक करके आता है। तो ब्रूम स्टिक ज्यादातर कहाँ पे कर लेते हैं, डियो मतलब दो टाइम पे हम लगाते हैं ना, सुबह शाम। तो ब्रूम कितनी बार लगाना है, 2 टाइम्स। 2 मतलब डियो टाइम्स में हमें ब्रूम स्टिक लगा के हमारा कमरा साफ करना है करके आपको ये पार्ट याद रखना है। फिर उसके साथ साथ गेज ग्लैंड पेरियानल एरिया, उसके लिए भी कोड की जरूरत नहीं। नैबोथियन ग्लैंड सर्विक्स का, वो कभी कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो नैबोथियन एंड सर्विक्स करके जो आता है, नैब द सर्विक्स, ऐसा सोच लेना, नैब द सर्विक्स मतलब सर्विक्स को पकड़ लेना है, वरना क्या होता है, सर्विक्स
स्लिप हो जाते हैं ना, सर्विक्स स्लिप, इसलिए लिप क्लेफ्ट ऑफ द सर्विक्स या फिर लिप ऑफ द सर्विक्स विल बी हेल्ड विद द फोर्सेप्स। फोर्सेप्स के साथ हम लिप को नहीं होल्ड करते हैं तो क्या है, स्लिप हो जाते हैं ना सर्विक्स, ऐसा आपको सोच लेना है। तो नैब द सर्विक्स करके आपको याद रखना है। फिर लुश्कास ग्लैंड करके आता है, वो कॉकिक्स करके बताता है, लुश्कास ग्लैंड कॉर्किस। तो लक्स एंड कॉक करके याद रखना है। लक्स एंड कॉक का एडवर्टाइजमेंट वो बहुत था ना, उसमें दोनों में आने वाले हीरोइन कौन थे, ऐश्वर्या राय। तो लक्स एंड कॉक का एडवर्टाइजमेंट में आने वाले ऐश्वर्या राय थे करके आपको सोच लेना। तो लक्स एंड कॉक, लक्स ग्लैंड कॉकिक्स करके। इतना तक समझ में आ गया कि इट्स फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई आई हैव टू आस्क एवरी टाइम। Share screen. Okay, share screen is not showing. Okay, okay, fine. You can. Okay, now it's a scene. Now it's seen. Now the screen is seen. No. No, Dr. Pyle is seen. I think the screen is visible. Dr. Razia, you can see the screen. Yeah, okay, fine. Okay, fine. Okay, I think it is available. Okay, so these were the codes we have told regarding the Bowman's gland. Bow in front of the nose, and then regarding the doll ka eye, brush in under the eyelid, फिर broom 2 times, broom dio times, and nab the cervix, lux and cock, इतना करके याद रखना है। फिर उसके साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी के पार्ट में आता है। तो एम्ब्रियोलॉजी के पार्ट में मेनली 4th वीक में क्या क्या ओपन होता है, अपर्चर्स ऑफ द बॉडी ओपन होने के पार्ट के बारे में है। तो ये अपर्चर्स में मेनली रिगार्डिंग फर्स्ट 4th वीक में क्लोएकल अपर्चर, एंड देन उसके साथ साथ 7th मंथ में सेरेब्रल कन्वर्जन्स करके आता है। तो इसमें आपको याद रखना है रिगार्डिंग 5th मंथ में जर्म्स ऑफ टीथ करके आता है। 5th मंथ में जर्म्स ऑफ टीथ, स्टिल विजिबल आई थिंक। ओके, yeah, okay, 5th month it is about the germs of the teeth. तो टीथ कैसे होते हैं, टीथ को हम पंच करना है, टीथ को पंच करते हैं ना, पंच मतलब टीथ को हम तोड़ देते हैं। तो पंचिंग के वक्त में हर बार इंजर्ड कौन सा होते हैं, टूथ इंजर्ड होता है। तो पंच द टीथ करके आपको ये कोड याद रखना है। तो इसके से क्या होता है, 5th मंथ में जर्म्स ऑफ टीथ का ओरिजिनेशन होते हैं करके। एंड देन उसके साथ साथ 3rd मंथ में प्रोस्टेट का अपीयरेंस के बारे में बताया। 3rd मंथ इट इज अबाउट प्रोस्टेट बिगिंस टू अपीयर। 9th वीक में गॉल ब्लैडर को दिखते हैं। 8th वीक में हार्ड पैलेट यूनिट, इसमें भी ज्यादातर 4th वीक में क्लोएकल अपर्चर ही याद रखना है, मतलब 4 क्लॉक आर प्रेजेंट या फिर 4 टाइम्स द क्लॉक टिक्स करके याद रख लेना। 4 टाइम्स, दिन में 4 बार क्लॉक की आवाज आती है करके, 4 टाइम्स पे क्लॉक के आवाज आने का लगा दिया है करके। एंड 5th मंथ में पंच द टीथ करके जर्म्स ऑफ टीथ, इतना है आपको याद रखने वाले पॉइंट। फिर उसके साथ साथ जेनिटल रिज को फॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में है नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट करके आता है, वो ओवेरी लिगामेंट है। ये क्वेश्चन के बारे में एक बार पूछा था, इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट और द ओवेरियन लिगामेंट करके ये पार्ट के बारे में आता है। इन्फेंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट, तो इन्फेंटिबुलो एंड ओवर मतलब इंफीरियर होते हैं ओवर, या फिर फंडस के अंडर ओवर होते हैं, मतलब फंडस के साइड में ओवर होते हैं, ओवरी होते हैं करके भी आपको याद कर सकते हैं। राउंड लिगामेंट ओवरी के अंडर होते हैं, ओवरी का ओ राउंड ही है ना, ओवरी का ओ राउंड ही है, तो राउंड लिगामेंट ओवरी के अंडर है करके मिल जाते हैं। फिर मुलेरियन डक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में है, उसमें फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस वो अपर 3/4 ऑफ वेजेना के अंडर प्रेजेंट है करके पार्ट मिल जाते हैं, अपर 3/4 ऑफ द वेजेना के पार्ट के अंदर
मेनली फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस प्रेजेंट है, वो भी हम छोड़ सकते हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सिसमॉइड बोन्स, ये क्वेश्चन भी एक बार क्वेश्चन में पूछा था, सिसमॉइड बोन्स का एग्जाम्पल के बारे में है। तो ये पेटेला, पिसिफॉर्म एंड फेबेला करके आता है। तो जस्ट पेटेला एंड पिसिफॉर्म वो दोनों ही याद रखा तो भी चलेगा। मेनली सिसम सीड्स की तरह होने वाले कुछ चीजें, मेनली पटेलर बोन है वो सिसम सीड्स का जाइंट वर्जन है करके सोच लेना। तो इससे क्या होता है कि पटेला जाइंट वर्जन है करके। तो सिसम को हम कैसे करते हैं, हम उसको पिस कर देते हैं, मतलब क्रश कर लेते हैं। तो सिसम पिस करना, या फिर पिस द सिसम, या फिर क्रश द सिसम करके भी आपको याद कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ न्यूट्रिन आर्टरी फोरामेन करके आता है, वो एल्बो टुवर्ड्स द नी करके पार्ट, वो भी छोड़ सकते हैं, वो पार्ट वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रिगार्डिंग फेशियस पार्ट के बारे में। फेशियल पार्ट में मेनली डिप्यूट्राइन फेशिया पामर एपोन्यूरोसिस पार्ट में आता है, डिप्यूट्रेन करके आता है। ये डिप्यूट्रेन फिर से आता है, डिप्यूट्रेन कंट्रैक्चर्स करके शल्य में आता है, डिप्यूट्राइन बर्न्स करके अगतंत्र की पार्ट में भी आता है। ये दोनों तब हम उसके पार्ट में कवर कर ले रहे हैं। डिप्यूट्रेन फेशिया जो आता है वो पामर एपोन्यूरोसिस कंडीशंस में, एंड देन कूपर्स फेशिया क्रिमास्ट्रिक्स फेशिया के अंडर आने वाले होते हैं। क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, इसमें ज्यादातर आपको याद कर सकते हैं रिगार्डिंग क्लॉकेट्स फेशिया है, वो फीमोरल फेशिया के अंडर आते हैं करके है। इसकी कोड वर्ड की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंटली पूछने वाले एरिया नहीं होते फेशिया, दैट्स व्हाई वी कैन स्किप दिस पार्ट। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वो है रिगार्डिंग असेंडिंग ट्रैक्स के बारे में है। असेंडिंग में मेनली एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, वो सब पार्ट असेंडिंग, एंड डिसेंडिंग में पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल करके आता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछने वाला एरिया ने, बट ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, क्योंकि ये पार्ट फिर से शल्य के पार्ट में भी आएगा। तो पहले आता है रिगार्डिंग टेलर्स का सार्टोरियस मसल, टेलर्स मसल इसका सार्टोरियस करके आता है। तो टेलर का क्या करते हैं, टेलर स्टिच करते हैं, क्या स्टिच करते हैं, साड़ी को स्टिच करते हैं करके आपको याद रखना है। तो टेलर आता है तो टेलर हर बार आपको साड़ी करके याद रखना है। Everyone is there, no? Okay, we are all there. ओके, टेलर्स मसल सार्टोरियस। फिर क्लाइंबिंग मसल करके आता है, वो लैटिसमस डॉर्से करके आता है। क्लाइंबिंग मसल्स लैटिसमस डॉर्से, तो इसलिए क्लाइंब करता है कौन, लैटर रीजन से। हम कहीं पर भी पेड़ के ऊपर चढ़ना है तो क्या है, हम पेड़ के लैटर रीजन से चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो क्लाइंबिंग इज इन द लैटर रीजन ऑफ द लैटरल रीजन, या फिर साइड से पकड़ के हम पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं करके सोच लेना। वो क्लाइंबिंग मसल लैटिसमस डॉर्से मिलने के लिए। फिर स्क्रूइंग मसल करके आता है। स्क्रूइंग मसल में मेनली बाइसेप्स ब्रेकी होते हैं, स्क्रूइंग। तो स्क्रू द बाइसेप्स, बाइसेप्स को हम खुद को स्क्रू करते हैं तब ही बाइसेप मसल बन जाता है ना। द वेरी इजीएस्ट मसल टू बिल्ड इज द बाइसेप्स मसल करके आता है। तो इसलिए हमारे बॉडी को या फिर खुद का माइंड को स्क्रू करना है बाइसेप्स बनाने के लिए। या फिर हम आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, मतलब बाइसेप्स दिखाने के लिए ज्यादातर स्क्रू लगाते हैं, तो ज्यादातर वो एरिया बाइसेप्स जल्दी दिखते हैं। तो स्क्रू द नेल्स सो द बाइसेप्स विल बी सीन, ऐसा भी आप करके आपको याद कर सकते हैं। पेरिफेरल हार्ट मेनली सोलेस मसल, तो सोल हार्ट, सोल व्हेन यू मीट योर सोलमेट योर हार्ट पंप्स, ऐसा करके सोच सकते हैं। सिसमॉइड बोन्स ऑलरेडी हो गया। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन बहुत बार पूछते हैं, आपको वाइवा में भी पूछा होगा। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन लेसर ओमेंटम करके आता है, एब्डोमेन का पुलिसमैन। तो ज्यादातर ओम चैंडिंग के लिए जस्ट है वो कोड की जरूरत नहीं। पुलिसमैन एब्डोमेन लेसर ओमेंटम करके आपको मिल जाए, उसकी कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीटेडली पूछा होगा। फिर उसके साथ साथ नॉर्मल वैल्यूज की पार्ट के बारे में फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हेपारिन होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वो भी छोड़ सकते हैं। ये मेनली विटामिन ई ग्रेटेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एंड ग्रेटेस्ट फर्टिलिटी विटामिन के तौर पे विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन करके आता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड का बायोसिंथेसिस के बारे में, एंड विटामिन B5 पैंडोथेनिक एसिड करके आता है। तो 5 आता है, 5 मतलब पंजा, पैंडोथेनिक में पंज की पैन है ना, तो पंज पैन का के पंच करना है करके भी आपको सोच सकते हैं। पान चबाते हैं ना लोग पान चबा के पंच कर देते हैं, अगर पान नहीं मिला तो भी पंच करते हैं, ऐसा भी करके आपको याद कर सकते हैं। वो विटामिन B5 और पैंडोथेनिक एसिड दोनों मिलने के लिए है।
तो ये बाय हार्ट किया तो ये सब मिल जाते हैं, B12 सेनाकोबैलिन वगैरह मिल जाते हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं। फिर सेक्स क्रोमैटिन फाउंड ओनली इन फीमेल्स, वो भी है। 1 लीटर ब्लड में 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वो भी, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं। फिर एक एक टेस्ट के बारे में है। तो ये टेस्ट में पहले आता है जैफ्स टेस्ट करके आता है। तो जैफ्स टेस्ट क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए बताया है। तो जैफ मतलब ज्यादातर आपको जिराफ करके याद कर सकते हैं, जिराफ की क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है, ऐसा करके भी सोच सकते हैं। हे टेस्ट करके आता है, वो बाइल सॉल्ट के लिए है। हे टेस्ट आर फॉर द बाइल टेस्ट। तो हे बाइल, हाई बाइल करके आपको सोच लेना। हाई बाइल हम बोलते हैं ना, हाई बाइल कैसे हो करके बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी हाई बाइल, तो हाई HI करके भी आ गया या फिर HAY कर भी आ गया, एंड बाइल का BI, हाई बाई करके आपको ये कोड याद रखना है। फिर फॉर्चेट टेस्ट करके आता है, वो बाइल पिगमेंट्स एंड एल्ड्रिच एल्डिहाइड टेस्ट है, यूरोबिलोजन, वो सब इतनी इसकी जरूरत नहीं। फिर माइसिल प्रोटीन में मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम आते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में आता है रिगार्डिंग जाइमोमीटर है। जाइमोमीटर फर्मेंटेशन को मेजर करने के लिए है। तो जाइम फर्मेंटेशन ज्यादातर हम हर बार बोलते हैं ना, जाइम इज द फर या फिर साइम इज द फर, जाइमोफर्मर या फिर जाइमोफर्म या फिर फम्सदी करके भी याद कर सकते हैं। उसकी कोड की इतना अच्छा कोड नहीं है, पर फिर भी आप टाइम लगाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है करके सोच सकते हैं। टाइम मतलब जाइम करके भी चेंज कर लेते हैं। जाइम मतलब टाइम करके सोचना है, टाइम लगाते हैं तो ही फर्मेंट हो जाता है ना, तो टाइम लगाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है। फिर स्टीरियोमीटर ये भी नहीं, स्टैक्टोमीटर, एनिमोमीटर ये भी नहीं। सब्सटेंसेस और पीएच में मेनली मिल्क का 7.1 करके आता है। तो मेनली यही हम मिल्क का प्यूरिटी टेस्टिंग के लिए कर देते हैं, पीएच टेस्ट करके। एंड देन स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ, थोड़ा भी सुबह का दूध, अर्ली मॉर्निंग का दूध हम दोपहर में लेते हैं तो थोड़ा अम्लता हुआ होगा, वो ज्यादातर उसका एसिडिटी के बारे में बताते हैं। फिर उसके साथ साथ टीयर्स 7.2 है, इसलिए कोई भी आपके सामने रोता है तो सी योर टीयर्स इज 7.2 इन पीएच, ऐसा भी करके आपको सरकास्टिक कमेंट पास कर सकते हैं। फिर उसके साथ आते हैं, इतना तक समझ में आ गया, अंडरस्टूड अप टू दिस? डॉक्टर डॉक्टर लाली, you understood up to this? Dr. Lali, Dr. Anju? Lali and Dr. Anju, understood? Yeah. The codes are clear? Codes are clear. Should I repeat it again? Codes are clear. Should I repeat it again? Payal Purti, Dr. Payal? Yeah, okay, fine. So coming to the next part. आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, नेक्स्ट PDF एनाटॉमी करके दिख रहा है क्या? ओके, ओके, देन कमिंग टू द एनाटॉमिकल पार्ट्स के साथ साथ आने वाले थोड़ा मेन सेल्स ऑफ स्टमक के बारे में है। मेन सेल्स ऑफ स्टमक आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं क्या अभी? मेन सेल्स ऑफ स्टमक करके या ओके, फाइन। तो फर्स्ट आते हैं रिगार्डिंग मेन सेल्स ऑफ स्टमक में। पहले पेरिटल और ऑक्सेंटिक सेल्स में हाइड्रोक्लोरिक, हम हर बार बोलते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से आता है, तो वो सेक्रेट करने वाले सेल्स को पेरिटल या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स नाम से बोला जाता है, पेरिटल या फिर ऑक्सीटल सेल्स करके। तो ज्यादातर परी और ऑक्सी, ज्यादातर ऑक्सीपर करके ऑक्स के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख के जाते हैं करके आपको सोचना है। आपको एक ऐसा इमेजिनेशन रखना है कि ऑक्स बोलते हैं ना, ऑक्स, OX, ऑक्स के ऊपर मतलब पर,
ऑक्स के ऊपर करके सोचना है। ऊपर मतलब पेरिटल, उसके ऊपर क्या रखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक डब्बा हम रख लेते हैं, वो डब्बा लेके वो हर जगह पे घूम रहा है करके सोच लेना। तो पेरिटल और ऑक्सिकिंडल सेल्स सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो याद करने के लिए ये पार्ट के बारे में बता दिया। फिर उसके साथ साथ जी सेल्स करके आता है। जी सेल्स मेनली गैस्ट्रिन को सेक्रेट करेगा एंड चीफ सेल्स पेप्सिनोजन को। फंडस को गैस्ट्रिक पेसमेकर नाम से बोला जाता है। एंड देन अपेंडिक्स का कॉमनेस्ट पोजीशन वो 12 o'clock पोजीशन में आता है, रिट्रोसिकल पोजीशन करके इसमें आ जाता है। फिर उसके साथ साथ पोर्टल वेन का लेंथ 8 सेंटीमीटर करके आता है। तो पोर्टल, हम रेलवे स्टेशन में पोर्टर्स को दिखते हैं ना, 8 o'clock से पोर्टर्स का काम शुरू होता है करके आपको सोच लेना है ये पार्ट। क्लियर अप टू दिस? क्लियर अप टू दिस? Dr. Dasia, Dr. Payal, Dr. Anju Lali, and Dr. Raghavendra Desai. It's clear up to this, the codes and the part. हमने आज थोड़ा ही टाइम मिला, कल ये नहीं होगा, कल मैं थोड़ा क्लास एक्सचेंज कर रही हूँ, तो इसलिए कल की जगह, कल डॉक्टर श्रीलक्ष्मी क्लास, परसों से हम क्रिया का कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, आई विल डू समथिंग अबाउट द नेटवर्क कनेक्टिविटी। जस्ट एनीथिंग यू हैव टू टेल, कुछ उसमें ऐसा कर सकते हैं तो चेंजेस ये कर सकते हैं, एंड इट विल बी बेटर लाइक दैट। इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन चैट और मैसेज मी पर्सनली, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, okay, so remember the motivation, everything, be updated and have a positive outlook. First of all, whatever can happen in life, but still you should be positive first of all. So good night for today. Yeah, okay, thank you, Dr. Anju, and thank you everyone. I'm taking exit. Okay, anything you were typing and see the last message. Yeah, okay, thank you, okay.